Hello students, a very good morning to all of you. I will teach you operating system in the 4th sem IT. Okay, so what will you learn in this operating system? So first you will see the syllabus. Okay, so let us see the syllabus portion क्या क्या है आपका. So here you will learn introduction of the operating system, what exactly the operating system means, and different functions of your operating system. And here each functions are divided into different chapter. Okay, like your process management, memory management, device management, deadlock handling, file management, and different system programming. Okay, where you can learn the compiler design, different phases of the compiler, how whatever you do और जो भी आप करते हो टास्क वो कैसे प्रोसेस होता है. ओके, you will learn here. So the objective of this course क्यों पढ़ेंगे हम लोग, to understand the concept and the function of our operating system obviously, and you also understand the notion of a process and all the computations, means how a process create, how a process can be processed by utilizing the CPU and how it executes, and in between अगर उसको कुछ input चाहिए तो वो कैसे थोड़ा टाइम के लिए हॉल्ट पे रहता है, देन कैसे रिज्यूम होता है एंड अगेन बिगिंस टास्क. देन टू इंट्रोड्यूस द क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम जो आप स्पेशली हम लोग डेडलॉक में देखेंगे, whose solution can be used to ensure the consistency of the shared data. We understand the concept of the deadlock, why deadlock happens, the prevention and how you handle the deadlock. Okay, recovery, provide detailed description of the various memory management, where you will learn the contiguous, uncontiguous memory. Okay, and fragmentation, defragmentation. Okay, so again you will learn the virtual memory management. आप पेज फॉल्ट, पेज हीट, ये सारा चीज़ लर्न करोगे. टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फाइल सिस्टम, टू डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लोकल फाइल सिस्टम एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स. यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द ब्रीच आइडिया अबाउट द सिस्टम प्रोग्रामिंग. ओके, सिस्टम प्रोग्रामिंग के बारे में आप जानोगे. सो लेट अस बिगिन. So there is no proper definition of your operating system, but in each source there are various definitions, but the concept is same. Okay, so the main motive and what the operating system exactly do, that's same. Okay, so let us see the content what will we learn today. That is your definition of operating system, objective of operating system, functions of operating system, evaluation of operating system, types of operating system, structures of operating system. Okay, so how we define an operating system. So an operating system is a type of software. As you know, there are two types of software, that is your application software and system software especially. Okay, so especially they are categorized into two types. That is, so here operating system is comes under system software, and system software is a type of software without which we cannot do our task. Okay, जो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी बोल रहे हैं, that also cannot work without the help of this system software or operating system. Okay, so this operating system act as an intermediary, और हम लोग बोलेंगे एक translation, that system between the computer hardware and application programs installed on the computer, or we can say this is the interface between the user and the computer hardware, because we cannot directly access the hardware. अगर मैं प्रिंटर या एनी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करूं, तो पहले मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. देयर आर वेरियस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स आर देयर, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपना सिस्टम में प्रिंट मारूं तो ही वो प्रिंट जाएगा. ओके, खाली वैसे वो प्रिंटर काम नहीं करेगा जब तक कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारा चीज़ मैनेज नहीं करेगा कि कौन सा डिवाइस आपका एलोकेट हुआ, कौन सा डिवाइस डी एलोकेट हुआ, कौन सा डाटा को कौन सा मेमोरी मिला, कौन सा डाटा को कौन सा मेमोरी डी एलोकेट हुआ, वो सारा चीज़ वो हैंडल करता है.
So thing is that this is the intermediary or the translation between the computer hardware as well as applications program. Okay. In the other word, you can not directly use the computer programs without computer hardware, without having a medium to establish connection between them. So although this operating system itself is a program or software, it allows the user to run other programs also, or it helps you to learn different applications on the system. So we can say that it's work behind the scenes to run your computer. Okay, so now let's see what are the objectives of the operating system. Okay, the first thing is conveniency, that user can convenient to use an operating system. Efficiency, that is the resources are very efficient to use. Ability to evolve, effective development of new system functions without interfering with service. In some cases there are major two objectives, that is conveniency, the second thing is better utilization of the resources. Okay, so it makes a computer system very convenient to use, and here it hides the details of the hardware from the programmer or the user and provides him with a convenient interface of using the computer. Okay, so it acts as an intermediary. Because of that reason we say that it acts as an intermediary between the hardware and the software programming of the high level interface to low level hardware, and making it easier for the software to access the use of those resources. Because uh, the high level languages are related to your human language. Okay, and computer doesn't understand it. So because of that we are using the translators. हम जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो तो कंपाइलर रहता है, वो कैसे ट्रांसलेट करता है, एंड आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है दैट अंडरस्टैंड और दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, उसको समझ में आता है, दैट वी कैन से दैट इज 0 and 1 उसको समझ में आता है, दैट बाइनरी. नेक्स्ट आपका जो मैं बोली कि इट helps you to managing the computer resources, means it involves the mean such tasks as keeping the track of who is using which resources and granting the resources requests, and also accounting for the resource users, means वो resource कितना टाइम के लिए वो यूज़ किया एंड कितना टाइम यूज़ करने के बाद वो छोड़ा, देन प्रोसेसर किस रिसोर्स को एलोकेट हुआ, एंड conflicting also mediating the conflicting request from different programs and also the users. Okay, next thing आपका what are the functions of the operating system. फर्स्ट आपका मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस हार्डवेयर मैनेजमेंट, रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डेटा मैनेजमेंट, इवैल्यूएट्स द सिस्टम हेल्थ, provides user interface, IO management, security management, time management, deadlock prevention and interrupt handling. Okay, so here you will learn memory management. Okay, लाइक जैसे कि हम लोग बोले कि जब भी आप कोई चीज़ प्रोसेस करते हो, कोई डाटा आप एंटर किए एंड आप वो डाटा को रखना चाहते हो, सो आपका टू टाइप्स ऑफ मेमोरी है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, रैम रोम, ये सारा चीज़ है. तो ये सारा मेमोरी सबको हैंडल करने का टास्क किसका है, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. सो वो मैनेज करेगा कि किस प्रोसेस को कौन सा मेमोरी एलोकेट करना है, किस प्रोसेस को का काम अगर ख़त्म हो गया तो उसको डी एलोकेट करना है, वो सारा चीज़ वो हैंडल करता है, कितना टाइम के लिए उसको वो प्रोसेस को वो मेमोरी एलोकेट होगा, वो सारा चीज़ वो मैनेज करता है. ओके, एंड द थिंग इज़ दैट मेमोरी मैनेजमेंट में आप और पढ़ोगे, बोली कि जैसे कि आपका फ्रैगमेंटेशन, डिफ्रैगमेंटेशन आप पढ़ोगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रोसेसर मैनेजमेंट, कि कैसे एक प्रोसेस न्यूली क्रिएट होता है, देन वो कैसे प्रोसेस होता है, देन आपका कैसे एग्जीक्यूट होता है. सो आपका डिफरेंट स्टेट है प्रोसेस होने के लिए. तो यहाँ पे प्रोसेसर मैनेजमेंट मतलब जब नंबर ऑफ, ऐसे तो नहीं, हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सो ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन रन एट द सेम टाइम. सो उस टाइम में क्या होता है ना, जब फर्स्ट प्रोसेस आया तो उसको क्या सीपीयू एलोकेट हुआ. सो जब
प्रोसेस एक एग्जीक्यूट कब होता है, जब वो मेन मेमोरी में आता है, देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट दिस टास्क. सो वो जब मेन मेमोरी आया तो उसको जब CPU यूटिलाइज वो किया, देन ओनली इट विल डू इट्स वर्क्स. ओके, सो वो सारा चीज एक प्रोसेसर को, एक प्रोसेस कितना टाइम तक रखे रह रहा है, मतलब कितना टाइम तक वो प्रोसेसर एक प्रोसेस को एलोकेट हो रहा है, वो सारा चीज वो मेंटेन करता है. देन डिवाइस एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट, देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस आर देयर, शेयर्ड डिवाइसेस, डेडिकेटेड डिवाइसेस आर देयर, वर्चुअल डिवाइसेस आर देयर. सो ये डिवाइस सबको भी, जो भी आपका हार्डवेयर सिस्टम्स आपका कनेक्ट होता है, डिवाइस ड्राइवर ये सब होता है, तो वो सारा चीज़ का मैनेज करने का भी काम आपका किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है. सो हियर और एक है आपका रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. सो हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करके या फिर इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं. सो वो सारा चीज़ को भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. मीन्स it offers the environment to run and use these types of software application developed to perform the specific task which is done by that application software. Like your we can say that हम लोग MS Word यूज़ करते हैं, Excel यूज़ करते हैं, any types of Photoshop यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस थिंग, जैसे कि मैं बोली मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस और हार्डवेयर मैनेजमेंट. ओके, देन द अदर थिंग इज दैट कि ये सारा चीज़ में आपका ये अभी वो मेंटेन करता है कि एक प्रोसेस अगर प्रोसेसिंग हो रहा है उसका स्टेटस क्या है, एक हार्डवेयर आप कनेक्ट किए हो तो उसका स्टेटस क्या है, वो सारा चीज़ भी वो मेंटेन कर रहा है. ओके, नेक्स्ट थिंग आपका है डाटा मैनेजमेंट. डाटा मैनेजमेंट में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, सम रॉ फैक्ट्स. सो इट हेल्प्स टू द मैनेजमेंट बाय ऑफरिंग and displaying the directories for data management, and you can view and manipulate the files, folders, like you can move the file, copy the file, cut the file, paste the file, and you can retrieve the file. Okay, ये सारा चीज़ आप कर सकते हो. Okay, so you can delete the file और folder, ये सारा काम भी आप कर सकते हो. यू ऑल्सो इवेल्यूएट द सिस्टम्स हेल्थ, मतलब कभी कभी डिफरेंट अटैक्स होने का चांसेस रहता है आपका सिस्टम के लिए. सो वो सारा चीज़, जैसे कि आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आप रखते हो, डेट रेगुलरली वो सिंक्रोनाइज वे में आपका सारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, वो सारा चीज़ भी. सो इट गिव्स अस द एन आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्डवेयर सिस्टम, हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम. एग्जाम्पल अगर दूँ तो यू कैन सी हाउ the CPU and how first the data is retrieved from the hard disk. ओके, कभी कभी देखे होगे कि आप सिस्टम में वर्क कर रहे हो, कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है, कभी कभी उसका प्रोसेसिंग स्पीड नॉर्मल रहता है. सो इट वेरीज. ओके, आप कितना लोड दे रहे हो, कितना प्रोसेस आपका बैकग्राउंड में रन कर रहा है, ये सारा चीज़. सो दैट ड्यूटी इज ऑल्सो of your operating system. Okay, then obviously it provides a user interface to the user. Okay, next thing IO manage, input output device management भी करता है. सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे कि आप का सिस्टम को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो यू विल पुट सम पासवर्ड. ओके, एंड इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरनेट, देन आप क्या करते हो, एंटीवायरस मतलब वायरस से आपको बचाना है अपना सिस्टम को, तो आप क्या करते हो, एंटीवायरस डाउनलोड करते हो. ओके, एंटीवायरस डाउनलोड करते हो या फिर इंस्टॉल करते हो, एंड रेगुलरली यू स्कैन योर सिस्टम सो दैट कि आपका सिस्टम बेटर परफॉर्मेंस दे सके. सो अनऑथोराइज्ड यूजर से आपको बचाना है अपना सिस्टम को, सो आप अपना सिस्टम में पासवर्ड सिस्टम एक्टिव कर देते हो. ओके, देन थिंग इज दैट टाइम मैनेजमेंट, कि एक प्रोसेस जब आया तो उसको कितना टाइम दिया हुआ है, कितना कौन सा काम टास्क को कितना टाइम देना है, वो सारा चीज़ वो मैनेज करता है. मीन्स इट हेल्प्स द CPU in the type management and the kernel of the OS
Okay, the kernel of the OS, or we can say that is the heart of the operating system, keeps checking the frequency of the processes that request the CPU. When these two or more processes that are equally important to complete their task, then CPU टाइम किसको दिया जाएगा, वो सारा चीज वो मैनेज करता है. ओके, so here also it allows to these processes in a राउंड रॉबिन फैशन. मतलब हम लोग डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में होगा, प्रायोरिटी बेसिस में होगा, कि और राउंड रॉबिन बेसिस में होगा, किस बेसिस में वो काम करेगा, वो सारा चीज़ हम लोग करते हैं, सो दैट कि हम लोग सीपीयू का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें. ओके, डेडलॉक प्रिवेंशन, मतलब दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस अपना काम कर रहा है, दूसरा प्रोसेस अगर प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, प्रिम्पशन एंड नॉन प्रिम्पशन. सो प्रिम्पटिव नॉन प्रिम्पटिव मतलब कभी कभी ऐसे होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब अगर फर्स्ट की एक अब ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, फिर वो प्रोसेसिंग होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अपना वेट किया रहेगा. तो अभी कभी कभी ऐसे होता है द नेक्स्ट, जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है एंड दूसरा प्रोसेस वो रिसोर्स को एक्वायर करना चाह रहा है, तो इट हैज़ टू बी वेट फॉर सम मिनट जब तक कि द फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट इट्स टास्क. ओके, सो वो सारा चीज़ हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक मैन हैंडलिंग, ये सारा में रिकवरी, वो सारा में देखेंगे. इंटरप्ट हैंडलिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्शंस ओकर्स. कभी जैसे कि आप नॉर्मली प्रोग्राम करते हो, जो इनपुट देने आप भूल गए, सो इट also responds to interrupt which are signals generated by program. Okay, and these things are handled by your operating system. Okay, next